गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। I have come here for the first time, and my question is, can we break the karmic cycles of world by just renouncing the world, sannyas? What is the right way? The karmic cycles cannot be broken just by taking sannyas if your understanding is that sannyas means leaving everything. Even leaving is an act. Karma means an act. Act done by body, by language, meaning by speech, by mind, by intellect. So from all the 4 levels we are doing the activities, and every action will have equal and opposite reaction to it. So when somebody says, I want to do this, is action. When the person says, I don't want to do this, also an action. It's both actions. If being married, staying at home is an action, then leaving everything and moving where? Let's say ashram, some cave, even that is an action. So just changing your postal address doesn't take you away from the karmic cycle. The karmic cycle can be only broken if you get the understanding of what the mind is, what's the relationship of the mind with you. And when you work deeply to know about the kind of samskaras which you have put in your mind, and you have ability to understand the punya from pap or the shubha from ashubha, pious to sin and good to bad and truth to untruth. So you get that understanding, very deep understanding. You get the understanding of why I am not a body, why I am not a mind. And you dig deep into your mind and remove these archetypes which are there in your subconscious, and then you work upon awakening towards the self, what the self is. So disassociating yourself from the illusion of mind and realization of who you are in your true nature. That is what sannyas actually is. Just wearing orange clothes, it doesn't make you a sannyasi. Unfortunately, I know about scores of such sannyasis who are dressed like a sannyasi, but deep down, they are as bad, as egoistic, as angry, as lustful as any person living in a society would be. That becomes more worst. What I am saying is very brutal. Very brutal. That's the fact. Maybe others can't dare to speak it because they see it as like protecting your own flock. I am not part of anybody's flock. I am not part of anybody's flock. I am with the truth, so I can dare to say this. That's why many Swamis are very upset with me. Why does she speak so brutal? Why can't she be always respectful for one and all? I am. I am respectful for one and all, but not to their minds and not to their... They have changed being sadhu into, should I say, cottage industry. So no sadhana is there. They don't even have any wish to do it.
But it's just another industry which they have thought doesn't need any expertise, doesn't need any degree, doesn't need any training. You are just part of some big ashram or big matha. And then by all the politics and power flexing, you may garner the seat of Mahanti. And how can you call them sannyasi? They are not. But a sannyas as per Bhagavad Gita is such that anybody can become a sannyasi if one realizes one's own truths or one's own being, realizes what Paramatma is, realizes this world's reality, and then is functioning with the totally non-egotistical, non-desirous, non-expecting aptitude. That is sannyasi. How do we break the karmic cycle? By not being a doer. By not being karta. Because if you are a karta, then you are a bhokta. Karta means doer. Bhokta means when you will receive the reward or the punishment of your own actions. Sannyas का अर्थ सम्यक न्यास. भली भांति प्रकार मैं क्या नहीं हूं ये जानना, मैं क्या हूं ये समझना. आदि शंकराचार्य भगवान के बाद ये भगवा वस्त्र पहनना और उसके बहुत से नियम जो है वो उन्होंने बनाए. शंकर से पहले ऐसे कोई नियम नहीं थे और यह भी आवश्यक नहीं था कि वो कषाय रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि हमारे सारे ऋषि विवाहित हैं. सारे ऋषि विवाहित. एक मार्कंडे ऋषि को छोड़ दीजिए, सनक सनंदन सनातन इन 4 भाइयों को छोड़ दीजिए, सुखदेव मुनि जी को छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर गिनती जो है ऋषियों की वो सब विवाहित है. पर फिर वो वैसे विवाहित नहीं ना जैसे तुम लोग हो. आपके लिए तो ब्याह भी भोग का माध्यम है, और उनके लिए ब्याह एक ऐसा विधान होता था कि कहते थे कि जरूरी है, विवाह करना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो सहभागिनी होगी जीवन की, वह आपकी प्रेरणा बनेगी. किस लिए? साधना के लिए, शास्त्र अध्ययन के लिए, संयमित जीवन जीने के लिए, और मनुष्य के मन की इच्छाओं को एक चैनल प्रदान करने के लिए. तो ये स्त्री के लिए भी आवश्यक है और पुरुष के लिए भी आवश्यक है. इसलिए जिन सप्तऋषियों का आप बाहर दर्शन करते हैं सप्तऋषि हॉल के बाहर, उसमें सिर्फ एक मार्कंडे जी हैं जो ब्याहे नहीं है, बाकी तो सब ब्याहे हैं. हाँ, अब ये भी हो सकता है कि अभी एक और हम क्रिएटिव एक्सप्रेशन देवें और इन सब ऋषियों की जो पत्नियां थीं उनके भी स्वरूप हम बनाएं कि तुम्हें मालूम हो कि किस ऋषि की पत्नी कौन थी. और वो चाहे वेदव्यास हों कि अत्रि हों कि भृगु हों, ये सब ऋषियों ने कितनी बड़ी देन दी है, कितनी बड़ा उपकार है उनका, कितना बड़ा ज्ञान उन्होंने प्रदान किया है. तो क्या हम उनको सन्यासी नहीं मानेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न हम उठा रहे हैं. गुरु नानक साहब विवाहित रहे, उनके बाद जितने गुरु हुए, एक गुरु को छोड़ के, तो बहुत छोटी आयु में शरीर चला गया था, सब विवाहित हैं. अधिकतर भक्त जो है विवाहित हैं. नामदेव हो, मीरा जी हो. हाँ, ये कि कईयों का विवाह बहुत ही थोड़े काल का था, पर जैसे सहजोबाई हैं वो तो विद्रोही हो गई थी. विद्रोही वो इसलिए हो गई कि ब्याह के लिए तैयार हुई और खवारागी के पति तो गया, तो कहती फिर मैं भी गई. ये एक बड़ी अद्भुत घटना है उनके जीवन की. घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, माने इतनी वैराग्य वृत्ति है कि सिवाय या तो गुरु सेवा, गुरु से प्रेम,
इतना है कि उस प्रेम की अग्नि में सब कुछ जल जाता है। और ये आसान चीज नहीं है, क्योंकि आपके करने की चीज नहीं है ना। किसी के अंदर प्रकट हो जाए, नहीं हुए तो नहीं हुए। अब जैसे मैं कई बार देखती हूं कि शिष्य लोग जो है वो कई बार आपस में किसी बात पे मन मुटाव कर लेते हैं, आपस में रहते हैं तो खींच जाते एक दूसरे पर, क्योंकि वो अभी योगी या सिद्ध पुरुष तो हुए नहीं है ना, या सिद्ध स्त्री तो अभी हुए नहीं, दे स्टिल वर्किंग। तो वो खटपट हो जाती, तो राजी नाराजी हो जाए, और उस राजी नाराजी में वो हमेशा नाराज होकर के निकल जाते। तो मुझे लगता है आया तो ये मेरे लिए था, रो रो के हैं कि संसार में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, यहाँ रहना, और फिर लड़े किसी और से और कट्टे हमसे कर गए। दैट्स नॉट फेयर। पर ये भी मेला है, सो इट्स ओके। क्योंकि मन है ना, मन बदल जाता है, रौद्र रूप ले लेता है। तो गुरु प्रेम अगर सही होए, उतना गहरा होए, वो फिर इस पचड़े में नहीं पड़ता ना। जैसे एक मुझे याद आ रहा है, एक आश्रम में एक ने कहा कि वो दूसरे जो उनके गुरु भाई थे कि वो तेरे लिए ऐसे बुरा बोल रहे थे, ये कह रहे थे ये चोर है, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, बहुत जितनी खराब बातें बोली। वो सुनता रहा, बोला नहीं कुछ। फिर उसने कहा कि उन्होंने ये सब कुछ जाके गुरु महाराज को भी बता दिया है, तो भी वो सुनता रहा, बोला नहीं कुछ। फिर उन्होंने कहा तुझे तू बोल ही नहीं रहा है, कोई रिएक्शन तो दे। कहता क्या रिएक्शन दूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि अगर मेरे में वो दोष है तो मेरे पे बड़ी कृपा कर रहे हैं कि मेरा दोष उजागर हो रहा। अगर वो दोष मेरे में नहीं है और वो मेरी सिर्फ बुराई कर रहे हैं तो मेरे तो वो पाप धो रहे हैं, मैं क्यों बुरा मनाऊं, खूब धो। क्या कबीर साहब कहते नहीं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी है मन की मैल धुआए। अपनी निंदा करने वाले को अपने पास कुटिया बनवा के पास ही रखो, वो रोज तुम्हारी बुराई करेगा, तुम्हारे पाप धुलते हैं। कहते तो मैं बुरा क्यों मानूं, और मेरे मन के पाप धोने में वो मेरे से कुछ पैसा भी नहीं ले रहे, फ्री सर्विस दे रहे, व्हाई शुड आई फील बैड अबाउट इट, लेट देम डू, इट्स ओके। अगर मेरे में वो गलती है तो मैं अपने अंदर झांकूंगा, क्या है, अच्छा नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, यू आर डूइंग ग्रेट सर्विस टू मी। तो इसमें मैं बुरा किस बात का मानूं। मतलब थोड़ी कड़वी बात है पर फिर भी सुनाती हूँ। कई बार ना मेरे कुछ भक्तों को अच्छी नहीं लगती, कहते हैं ऐसी बात आप सबके बीच ना किया करो, पर मुझे लगता है ऐसा क्या। मेरी शरीर की आयु 19-20 साल की रही होगी, और मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हो गए जो मेरी बहुत खूब बुराई करें। और बुराई करने वाले एक साधु वेश के भी थे, माने साधु संत महाराज हैं पर वो भी करते थे। तो मेरा नाम लेके उन्होंने अपने सत्संग में कहा, अरे वो तो नरक में जाएगी। अब ये बात जिन लोगों ने सुनी उनको बहुत बुरी लगी। फिर वो मुझे जब मिलने आए तो मुझे आके कहते हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने ना सब सभा में उन्होंने ऐसा बोला कि ये तो नरक में जाएगी। तो मैंने कहा तो फिर रेडी हो मेरे साथ चलने को, क्योंकि तुम भी यहां आ गए हो। आर यू श्योर नाउ, तुम यहां क्यों आए हो पागल। कहते नहीं, मतलब हमको तो बड़ा खराब लगा। मैं क्या खराब क्या लगा भाई, डॉक्टर कहां जाता है जहां बीमारी हो। तो अब अगर कोई नर्क है और उस नर्क में कोई लोग तड़प रहे हैं तो वो मुझे वहीं भेज रहे हैं ना, मैं वहां जाऊंगी। जैसे यहां पंडाल लगता है सत्संग होता है, फिर हम वहां पंडाल लगा के सत्संग करेंगे, है ना। जहां बीमारी वहां डॉक्टर, जहां भूख वहां भंडारा लगाओ ना, जहां भूखे बैठे हो वहां भंडारा लगाओ। तो मेरी आवश्यकता अगर वहां होगी तो ईश्वर वहीं भेज देंगे, तो वहां भेज देंगे तो हम चले जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो वो सब आए बड़े दुखी बड़े गुस्से में, फिर सब लोग खूब हंसे इस बात पर। नहीं कहा वो हमें कितना योग्य समझते हो, उनके 10 चेले होंगे, उन 10 चेलों को नहीं भेज रहे, हम ही को भेज रहे।
कि ये काम ये कर सकती है, ये नहीं कर सकते. सो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट. तो उसमें एक बड़े उम्र की महिला थी, उनका नाम शांता था. कहती इनका कुछ नहीं हो सकता. मेरे को कहती इनका कुछ नहीं हो सकता. अभी हम इतनी बड़ी खबर लाए हैं. तो इस खबर का रिएक्शन ऐसा, बोले ढीला ठंडा सुतली बम. तो बात यह है कि कर्म का लेखा जोखा तब चलता है कि किसी ने आपको गाली दी, आपने पलट के गाली दी. किसी ने आपसे लड़ाई की, आपने उठा के ईंटा उसका सिर फोड़ दिया. अब कर्म का चक्कर क्या है, आप उसको मारोगे, वो आपको मारेगा, तो गिव एंड टेक चलता रहेगा. ये हो गया कर्म का खाता खुल गया. अब हम खाता नहीं खोलना चाह रहे, क्या करें? किसी ने हमको गाली दी, हमने ली नहीं. भाई कोई आके मुझे चीज दे, अगर मैं लूं नहीं तो क्या फर्क पड़ता है ना उससे. मैं ले लूं तो फर्क पड़ेगा. मैंने ली नहीं. अब उन्होंने हमें नर्क भेजा, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम वहां भी सत्संग करेंगे. तो हमने ली नहीं ना. उनने जो दिया अपमान, हमने लिया ही नहीं है. लिया नहीं तो हमारी ओर से उनको क्या वापसी मिलेगी बोलो. और तुम्हें हैरत की बात बताऊं, हम एक बार अमेरिका में थे, तो मुझे उन साधु जी के कुछ चेले मिले, और मुझे वो कहते हैं कि वो लास्ट जब यहाँ आए कोई 4 साल पहले, तो कहते हैं कि अब ना बूढ़ा हो गया हूं, अब ना मैं अमेरिका नहीं आ पाऊंगा, तो तुमको अब कुछ जानना सीखना हो ना, तो तुमने सिर्फ और सिर्फ गुरु मां को मिलना और कहीं नहीं जाना. लो, हमको फिर बड़ी हंसी आई. मैं लो जी, पहले नर्क में ड्यूटी लगाई, अब अपने चेले हमारी ओर भेज रहे हैं कि नहीं वो ठीक रहेगी, इधर उधर मत जाना, साधना में कोई जिज्ञासा हो तो तुम उसको मिलना.